ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪਰਥਗੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਲੇ ਰਾਜਰੂਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਰਾਜਰੂਪ ਕੋ ਦੇ ਆਉਣੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਗਦੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਂ। ਜਾਇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਰੂਪ ਗਦੇਲਿਆਂ ਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਗਦੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਗਦੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ। ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਈਂ। ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਕਰ ਲਈਏ। 7 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਜੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਿਰਾਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਾਜ ਲਈਏ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜੱਸਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਿਵੇਂ ਕਰ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਘਸਾਈ ਗਏ। ਪਾਛੇ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਛਕਣ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਛਕੋ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲਹੂ ਕੀ ਨਦੀ ਵਗੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਜਾਂ 14 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਰਾਤ ਉਸ ਕੋ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾਏ ਬਿਰਾਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਲਵਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਰਹਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਏ। तलवार खड़क पई। लाहौर में तलवार खड़क पई। जेड़ा गद्दी पर बैठता है किसी नूं वड देना, मार देना शुरू किया है। पहले गद्दी खड़क सिंह को मिली सी, उसके गुजर जाने के साथ ही कंवर नौनिहाल सिंह को मार दिया। फिर गद्दी शेर सिंह को मिली, उसको भी मार दिया। फिर जवाहर सिंह को बुरशिया ने वड दिता सी। जिंद कौर करोप होई कि मेरा भरा वड दिता है इन्हां बुरशिया ने, इन्हां का विशाम ना चुको। जुल्मियां ते लक बन लिया है। जेड़ा गद्दी पर बैठता है उसे नूं वड दिंदे हैं। बुरशे हंकारे गए हैं। उसने फरंगियां को लिख भेजिया, बुरशे हंकारे गए हैं, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਵਨੇ ਕਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਦਕੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੋ ਸਭ ਆਈ ਜਾਵੋ, ਫਰੰਗੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਤਾਵੇ ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਤਾਬੀ ਆਵੋ, ਡੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। माता सदा कौर जी ने प्रेम नाल कानों में वाले ते गल में कंठा पाए दिया। बाबे जस्सा सिंह जी छोटे भाई बुद्ध सिंह जी को नाल भेजिया कि तू निगाह रखी कि जिथे गहने देन उथों लैके मुड़ आवी। मस्ताने होए हन।
कोई ला ना लवे जा सुट ना देन। दोनों भाई तुरे लाहौर को। आगे बिलगा नाम का ग्राम था। तिसी धर्मशाल में जाए उतरे। उत्थे एक बावा रहिंदा सी। उसनूं बोला कीता, अज बावे की खेप मारी गई है। अज बावे ने मौज करनी सी। खिज खिज के पवे बावा कहे, किधरों बलाई आया हन रब दे मारे होए। जां तुरने लगे तां मस्तक को चीरा दे के लहू कढ़िया। सतगुरु जी छोटे भाई पुछया तां बचन कीता, भल के दसांगे। अगले दिन लड़ाई होई, लहू ही लहू होया। अगली रात जीरे रहे। उत्थे भी बावे नूं छेड़ी गए। राम राय का सिख सी। उसनूं कही गए, तू तां कंजरां वाला भेख पाया होया है, तेरे सिख भी कंजर होवणगे। उत्थों तुरे तां श्री सतगुरु जी किसी गरीब दे घर जाए रहे। उसने बड़ी सेवा कीती। तुंगल ते 22 रुपए उसनूं दे दिए। गरीबी देख के रस्ते में महाराज बुद्ध सिंह ने पुछया, तुंगल ते 22 रुपए कित्थे हन? श्री सतगुरु जी बचन कीता, खुआजा भुखा मरदा सी, तिस नूं दे आए हां। अगे गए तां 100 ਕੁ मुसलमान आए पिया लुट्टण नूं। श्री सतगुरु जी बचन कीता, भाई दे दो, उपाधि कानू रखनी है। कपड़ियां की गठड़ी में कंठा सी, गठड़ी दे दिती। दोहां भाइयां के कछहरे ही रह गए। सब कपड़े उतार लए। महाराज बुद्ध सिंह जी बचन कीता, मैं 23 बरसां का सी, उदों एक ने मैनू तलाई दिती। उत्ते वास्ते पत्तन लंघ के पार होए तां एक खे आया। श्री सतगुरु राम सिंह जी बचन कीता, भाई इस थे विच माया है, तैथों कड्ढी नहीं जानी है। तू हुण मुड़ जाओ घर नूं। बचन मन के छोटे भाई मुड़ आए। सारा हाल कह सुनाया। नगन ही आए घर में लिखारी नाल गुरु हरि सिंह जी बचन कीता, मैं कदे भी बचन ना सी मोड़िया। जो कहन सो करना। बहुत प्रसन्न होई के खुशियां देनियां। लाहौर पहुंचे। श्री सतगुरु राम सिंह जी जाए रहे। लाहौर में सारी फौज इकट्ठी हुई। सब आपस में कहते हैं, रोज गुरु जी कहते हैं, मलेश खालसे का नाश होना है, सो हुण नाश होण लगा है। जिस फौज विच श्री सतगुरु जी सन, सो भगतां की फौज सताउंदी सी। भजन पानी करके भजनी सिंह कहन, कार तुर पई है। जो बोला रोज करदे हैं, सो तलवार खड़क पई है। फौज की चढ़ाई दा अरदासा। फरंगी के आने की खबरां आईयां, जो मुदगी डेरा आए लाया है। सब फौजां को हुक्म दिया, मुदगी पर धावा है। टुंडी लाट आई लत्था है, सिंगां के हाथ देखने हैं। राज रौला पै गया। सब कहन हंकार के साडे अगे फरंगी की चीज हन, सबको खपाए देवांगे। सारियां फौजां रल के कड़ाह प्रसाद करवाया 25 रुपयां का। जा अरदास करन की तैयारी हुई तां विचों सिंगां ने कहा कि ओ जो मस्ताना है, तिसके आए बिना नहीं अरदासा करना है, भावें रात नूं आवे। अंतरजामी जी सिंगां दा प्रेम जान के पहर दिन रहिंदे आए। सिंगां ने अर्ज कीती, जी फड़े दा अरदासा करना है, अगे जो आप दा हुक्म है। श्री सतगुरु जी एक लत्त के भार होए के सूरज वन्ने मुँह करके ज्यों खड़े हैं, सूरज विच निगाह करके खड़े रहे। जां दिन छिपन लगा तां श्री सतगुरु जी धरती पर डिगे। पिठ परने फुर्ती से उठ के भजन कीता, भावें ते कड़ाह प्रसाद छक लवो ते भावें दबाई देवो, जित खालसे की नहीं है। वचन पूरा होने के वास्ते भावी ने प्रेर के अखवाया कि मारांगे फरंगी नूं। हंकार नाल चढ़े। श्री अमृतसर कड़ाह प्रसाद करवाया दरबार में। अरदासा फड़े का करके चढ़े। तरन तारण भी कड़ाह प्रसाद करवाया। अरदासा फड़े का करके चढ़े। तलाव की गुठ पर मूर्तां बनियां रहिंदियां सन, मिट्टी कीयां। श्री सतगुरु जी सब भंन दित्तियां। डाकी पई। सब रामी जाके श्री सतगुरु जी के कीती ते मेहर सिंह ने जीत सिंह को कहा कि 2 पैसे लै जाओ, शरदाई लै आवीए ते छकाईए, कुछ गर्मी दा तत्त मालूम हुंदा है। सुन के श्री सतगुरु जी तेजी में होए के बोला कीता, तेरी मत तां खे भी नहीं है। गर्मी नूं इह थां है, होर गर्मी नूं थां नहीं है।
ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ? ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। आज से चौथे दिन को तीर लगेगा, डाकी पवेगी, पहले फौज में पवेगी, फिर मुल्क पर पवेगी। चौथे दिन डाकी पई फौज में, सत्थरां दे सत्थर लथे, फिर होर जगत में पई कि आवे नाली प्राण जुदा होई जावन। जिन्हां का भजन लिया होया सी तिन्हां ने अर्ज कीती, जी साडा की हाल होवेगा? बचन होया, तुसी डरो ना, तगड़े हो के भजन करो। भजन की रुत आई है, भजन करो जोर नाल, तुहानू डाकी ना आवेगी। जिन्हां ने बचन मन के भजन किया उन्हां को तां ना आई डाकी, होर कोई अंत नहीं रहा। एक सिंह सरहाली का श्याम सिंह सी, छुट्टी लैके डरदा डाकी थी चला गया घर। घर आउंदा ही डाकी ने रोक लिता तां लगा पछतावन, कहे मैं कानू आउणा सी, उत्थे रहिंदा तां राजी रहिंदा। संतां के बचन नाल इत्थे भी डाकी ने रोक लिया है। लगा भजन करन तां रछिया होई, बच रिहा भजन के प्रताप नाल। मुदकी दी लड़ाई जा पत्तन लंघन लगे, जो बंदूक सी सो दरिया के विच सुट्टी सतगुरु जी। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਂਗ ਹੈ? ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰੰਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੁਦਕੀ, ਫਰੰਗੀ ਨਾਲ युद्ध होने लगा। काबल सिंह 12 तोपां का गोलंदाज जमादार सी, बड़ा निशानची सी चुनवा। फरंगी ने दूरबीन लाई के देखा, जो ओह गोलंदाज जिन्ना चिर नहीं मरदा है उन्ना चिर साडी जित नहीं हुंदी है। फरंगी के गोलंदाज ने ऐसी शिस्त बांध के गोला मारिया, काबल सिंह नूं जाए लगा, मर गया। सतगुरु का शराफ पूरा होया, कहा सी कि तू तोप नाल बद्धा है सानू, तू भी तोप नाल उड्डेगा। सो तोप नाल ही उड्डिया। बड़ा युद्ध होया, फरंगियां का मोर्चा तोड़ दिता सिंगा। फरंगियां को बांझ पै गई, मगरों बोरियां विच सरों आई गई बारूद दी जगह। सिंह देखन तां बोरियां विच सरों है। उधरों पहाड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਸੋ ਲੰਘੇ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਪੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਲੱਗੇ ਡੁੱਬਣ ਸਣੇ ਸ਼ਸਤਰੀ, ਕਈ ਤਾਰੂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਗਏ ਸੋ सतगुरु जी से पुछने लगे कि हुण तुसां दा बोला पूरा होया है। जेड़ा कहंदे सी कि मलेश खालसे का नाश, सो वाक पूरे होए हैं। जो भजनी सिंह थे सो सारे ही बच रहे, तत्ती वाव नहीं लगी। तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बचन किया, गुरु जी आए आओ जिन्ना चलना है। कान सिंह को भी बचन किया, चल कान सिंह चलिए। सब चुप कर रहे, कोई ना तुरया। तां श्री सतगुरु रामदासपुरे साहिब नूं तुरे, लुधियाने पहुँचे। जा सतलुज दे पत्तन पर आए तां पत्तन बंद सी, मलाहां ने बेड़ी ना छड्डी। श्री सतगुरु जी दरियाए में छाल मारी, बचन किया हुण डोबदा क्यों नहीं है। यही बचन कई बारी किया, दरियाए के पार हो गए, लुधियाने आए। मामी रामी श्री सतगुरु जी मामे के घर आए। पहले तो सत श्री अकाल बुलाई, फिर किया आदम महादेव। अंदर आवाज़ा सुनिया मामी रामी ने। नूह नूं कहा ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾਈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੀ ਆਈ ਦੌੜ ਕੇ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਦਲਾਨ ਮੈਂ ਪਲੰਗ ਡਾ ਵਿਛਾਵਨਾ ਵਿਛਾਈ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਥੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਜਾਏ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਮਾਮੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਵੇਗੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ।
सतगुरु जी के लाल नेत्र नाम की खुमारी में रंगे हुए हैं। चेहरा दमकदा है, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ जी को मानते हैं। बाणी ग्रंथ साहिब जी की पढ़नी, आसा दी वार भी लाउणी। मामी राम कौर राम राम ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मामे का पुत्र खजान सिंह तिसका बड़ा देवता स्वभाव सी। पदार्थ की कुछ कमी ना सी। मामी रामी का भरोसा बहुत सी गुरु जी पर। कहने लगी कि मैं तेरे मामे थी पूछना कि फ्लोर किधर है। मामे तेरे ने कहना तू लाहौर दी ताई लगदी है, तेरा की काम है लाहौर। जो तैनू लोड़ है सो सानू कहो, असी लियाई दिंदे हाँ। मैं कहना मैं अपने दोहते को लै आवांगी। तेरे मामे ने कहा लाहौरों फौजां चलियां गईयां हैं, तू कित्थे जाना है। तां मैं चुप कर रही। इस तरह दीयां गल्लां करदी सतगुरु जी नाल खुशी विच भरी होई कोठी उत्ते चढ़ के आवाज़ा कीता, नी धर्मो मेरा राम सिंह आए गया है, जिसनू मैं रोज़ याद करदी सां। दर्शन कर लवो। माईयां बीबियां आईयां दर्शन नू, मत्था टेक के बैठ गईयां। एक तीवी पाछे से आई, उसनू बचन कीता, ਇਹ तीवी साडे किते काम आवेगी समय से। मामी ने मिठा प्रसाद वरताया। सब तीवियां चलियां गईयां। श्री सतगुरु जी भी चले गए बाहर नू। मामी ने नूह कहा, गऊ दी धार कढ लै, इन जाई के छेड़खानी करनी है। हिंदू मुसलमान साडे घर आवणगे। अंतरयात्मा श्री सतगुरु जी शिवाले में जाए बड़े भयानक रूप धारिया होया है। अगे पुजारी आरती करते सी। देख के रूप पुजारियों नू भै होया, आरती भी ना कीती, सब नस गए। गुरु जी दोवें दीवे बजाई दिते, टल तोड़ दिता, घर नू आए गए, दरवाजे लगे लगाई, घर आए बड़े। पलंग पर बैठ के बचन कीता, मामी तू की आखदी सैं भोली नू, धार कढ लै, इन्हें छेड़खानी करनी है, हिंदू मुसलमान साडे घर आउणगे। बिंदी पुत्र नहीं रखना। एक लड़का होए के श्री सतगुरु जी का चढ़ गया सी। मामी जी कहा कि तुहाडा लड़का चढ़ गया है। श्री सतगुरु जी बचन कीता, चंगा होया चढ़ गया है, नादी खालसा पैदा करांगे। बिंदी नहीं रखना है, नादी पुत्र बथेरे होए जाणगे। मामे दी धी भैन सी। पहले तां उस बेर खाधे, फिर दाने भुजे होए खाधे। देख के श्री सतगुरु जी बचन कीता, पट्टी जाए कुड़िए, इतना खानी है। चानिया तरखाना ने सानू काल्स भेज दिती है। कुड़ी दा रंग काला सी। मामा हरी सिंह। इतने में मामा जी घर आए। नेत्रों से दर्शन करके बोले, अज तां साडे घर रंग लगा होया है। पर्स पर फड़े फतेह बुलाई, बचन करने लगे। बड़ी खुशी हुई। मामे हरी सिंह को गुरु जी बचन कीता, अगे तां प्रसाद वरतावदे हुंदे सी, प्रसाद दिओ। मामा जी कहा, जी मैं हुणे लै आउंदा हां। होर अर्ज कीती, जी गुड़ फरियादी हो गया सी। परमेश्वर पास जिधर मैं जांदा हां उधरों ही मैनू खाण नू पैंदे है। परमेश्वर जी बचन कीता, मेरा भी शक्कर नू चित करदा है। बचन कीता, लै आओ गुड़ प्रसाद। मामा जी थाली में पाई के लै आए। जा वरतावन लगे। मामी ने अपनी नूह नू लत्त लाई के हौली जिही कहा कि तू भी जाई के प्रसाद मंग। श्री सतगुरु जी मामी नू बचन कीता, नी तू भोली नू आंदी है लत्त नाल लत्त लाई के प्रसाद मंग, असी नहीं दिंदे हाँ। भोली ने संकल्प कीता, जो मैनू क्यों नहीं दिंदे हैं प्रसाद। मेरे मापिया ने ना तमाकू वरत्या है, ना नील ही वरत्या है, ना कुसंबा वरत्या है, होर की कसूर है। बचन कीता, गुरु जी तां तैनू प्रसाद दिंदे हाँ, जेकर चक्की रोज़ पीनी मंजूर करे। मामी ना चक्की पीहे, तू पीहा कर। भोली ने कहा कि जी मैं नहीं चक्की पीहन दिंदी, सारे ही काम करांगी। फिर प्रसाद दे दिया। छक लिया। भोली ने बड़े प्रसन्न होए।